Hello everyone. Good morning. Good morning to all of you. Hello, hello. Voice audible ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Hello ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର. Good morning. Good morning to all of you. Voice audible ତ? Yes or no? Deepak, good morning Deepak. ପ୍ରଣାମ ଇପ୍ସିତା, good morning. ପ୍ରଣାମ to all of you. Start କରିବା ଆମେ. ଠିକ ଅଛି? ତ ହଁ. Hello ଶଶି ରେଖା, କେ ଅନାଦି, ନମିତା, good morning. Good morning, ପ୍ରଣାମ. Okay. ତ ଦେଖ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି। ଆମେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି କଥାଟା। ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ତ ତମେ କହିଥିଲ ଯେ ସାର୍ ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର କରିବା ବୋଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିଛି। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟର ସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା। ଓକେ, ରିଭାଇଜ କରିକି ଆମେ ଏ ଚାପ୍ଟରକୁ पूरा ଆମର ବେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଓକେ ଓକେ एवरीवन, रेडी टू स्टार्ट? रेडी टू स्टार्ट? ओके सानवी, मधु, नमिता, ओके। सो स्टार्ट କରିବା ଆମେ ଆଜି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ। ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ योर एलटीआर स्पेशल मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट रे ଆମେ ଏଠି डिस्कशन କରିବା थ्रू दिस चैप्टर। आज जो डिस्कशन କରିବା ଆମର डिस्कशन ରହିବ फर्स्ट मोल एज नंबर, मोल एज मास, मोल एज वॉल्यूम and stoichiometric calculations, concept related to density, percentage yield, percentage purity, average atomic mass and concentration terms. Basically हमें ठीक अच्छे तो ए concept related questions करिवा and questions through रे हमें हम concept को भी बुझिवा। ओके, डन। तो देखो हमें स्टार्ट करिवा। मते फास्ट मोल कहले तुम समस्त बुझिछ कोन? हाउ डू यू मीन बाय मोल? हाउ डू यू मीन बाय मोल? मोल कहले कौन बुझिछ? हमें हम फास्ट क्वेश्चन करिवा। त पूर्व मते बस कहि दियो जे व्हाट डू मीन बाय मोल? मोल कहले कौन बुझछ समस्त? जल्दी जल्दी मते चैट बॉक्स रे कहो। आज बहुत कम टाइम हमको बहुत सारा क्वेश्चंस करियार अछि, तो मते जल्दी कहो जे मोल कहले बुझछ कोन? जल्दी आंसर कहो। मोल कहले बुझछ कोन? व्हाट डू मीन बाय मोल? ओके ओके, ज्ञानरंजन प्रणाम। केमिस्ट्रीज मेजरिंग यूनिट, अच्छा ओके। मेजरिंग यूनिट ठीक अच्छे, बट एते भी करेक्टली कहि परिबानी। ओके ओके इफसी तो mole is nothing but this is just a number and that number is 6.023 into 10 to the power 23. किछिटा बुक रे लिखुଛି 6.022 into 10 to the power 23, नियरली सेम वैल्यू, तो ताकू नै केबे कंफ्यूज होबनी। ओके ठीक अछि। तो मोल कहले हमरो गोटे नंबर जोटा कि 6.023 into 10 to the power 23। तो मते फास्ट गोटे क्वेश्चन अछि तुम सामने रे। Atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 20 gram of B. Okay.
Well, atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, calculate number of atoms. Calculate number of atoms. এটা 20 গ্রাম না, এটা 2x গ্রাম, 2x গ্রাম। Number of atoms in 2x gram of B. এটা not 20, একক করে দিয়া 2x gram, 2x gram of B. Okay. Atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B. জলদি আনসার করা, কুইক। গোটে মিনিটে কোশ্চেন সলভ হওয়া দরকার, তারপরে মু আনসার সলভ করিবে জলদি। গোটে মিনিট, উইদিন এ মিনিট সলভ হবার আছে। মোল ইজ এ নম্বর, হ্যাঁ, 6.023 into 10 to the power 23. Okay, entities. Entities are the smaller entities, just like atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, radicals. ঠিক আছে? Okay? Okay, সাই শোনা। কোশ্চেন তোমার সামনে, কোশ্চেন সলভ করো। ঠিক আছে? ওকে সাই শোনা, কোশ্চেন সলভ করো। কোশ্চেন আছে atomic weight of two elements, দুইটা এলিমেন্ট দিয়েছে A and B, তার ওয়েট দিয়েছে 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B. 2x gram of B. Okay? Yes, 6.022 কিছুটা বুক রে দଉଛି 6.022 and কিছুটা বুক রে বা কিছুটা জায়গা দଉଛି 6.023. তো তাକୁ ନେଇକି ଆମର କିଛି ଲଫଡା କରିବାର ନାହିଁ। ঠিক আছে? both are nearly same. Okay. আরে ସାଇ ସୋନା ସୁବାନୀ ପ୍ରଣାମ 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 ସବୁ, ମାନେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଏ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଏ ମେସେଜ ସବୁ ପଛରେ। ଓକେ, ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ କର କ୍ୱିକ୍। Question ଅଛି atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B. জলদি করো। আচ্ছা, ওকে। সুশান্ত আনসার 2y. ওকে, সাই সোনা আনসার 2y. ওকে, ওকে। অঙ্কিতা 2y. ওকে, নেক্সট স্বাগতিকা 2y. ওকে, স্বাগতিকা। বাকি ସମସ୍ତେ জলদি আনসার কো। 2y. ওকে মধু। ওকে ইপ্সিতা 2y. ওকে, ସମସ୍ତଙ୍କର 2y, ସମସ୍ତଙ୍କର 2y। ପଲ୍ଲବୀ 2y, ସାଇ ଶଶି ରେଖା 2y, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ 2y, ସୁଭାନୀ 2y. ଓକେ, ଓକେ, ସାଇ ସନ୍ନା 2y. ଓକେ, ওকে। জ্যোৎস্না মল্লিক 2y, নমিতা 2y. ওকে নমিতা, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ରଙ୍ଗ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ରଙ୍ଗ। ଏ ଯାଏଁ କୋଉ ଜଣଙ୍କର ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଲାନି। नो वन, କୋଉ ଜଣଙ୍କର ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ଜଣଙ୍କର ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଲାନି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର। ଦେଖ, y ନମିତା, ଏବେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର y। ଓକେ ନମିତା, କରେକ୍ଟ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ସେ କହିଲା ଆଟମିକ ୱେଟ୍ ଅଫ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ A and B is 20 and 40। ସେ କହୁଛି ଆଟମ A ଅଛି and A ର ୱେଟ୍ ଅଛି 20, B ର ୱେଟ୍ ଦେଇଛି, B ର ଆଟମ B ର ୱେଟ୍ ଦେଇଛି 40। ଓକେ, atomic weight ଦେଇଛି 40, that means this is 20 AMU atomic mass unit and this is 40 AMU. Okay, correct. When X gram of A contains Y atoms, যদি ମୁଁ A ରୁ ନଉଛି X ଗ୍ରାମ, ତା ମାନେ A ର given mass କେତେ ଦେଇଛି, given weight of A ଦେଇଛି X ଗ୍ରାମ, X ଗ୍ରାମ। ତାପରେ କହିଛି then calculate number of atoms in
2x ग्राम ऑफ बी तमने बी रो वेट देचे वेट ऑफ बी देचे 2x ग्राम ओके करेक्ट 2x ग्राम ओके तो देखो तो बहुत सिंपल कथा जे बर्तमान पई जदी ए रो एटॉमिक मास होचे 20 एम तालर मोलर मास केते थिबो मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ए थिबो 20 ग्राम पर मोल 20 ग्राम पर मोल ओके मोलर मास कोन मोलर मास कोन तुम चार्ट बॉक्स रे कहबो म एटा सॉल्व कर सला पर देखियो तुम आंसर अच्छा तापर बी रो मोलर मास बी रो एटॉमिक मास होची 40 एम ताले मोलर मास ऑफ बी ही जिवो 40 ग्राम पर मोल 40 ग्राम पर मोल ओके ठीक अछि तो मतलब जदि मु काढी बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स काढियार फार्मूला कोन ना गिवन मास और गिवन वेट ठीक अछि सब बेले ख्याल रखियो केमिस्ट्री रे मास चाहे वेट से फिजिक्स रे मास अलग वेट अलग बुझियो कथाटा फिजिक्स रे w इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी राइट तो किंतु हम केमिस्ट्री रे मास चाहे वेट से एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट भीतर कंफ्यूज होबनी बुझियो the number of moles of A is given weight of A divided by molar mass of A. This will be formula, correct? Just like this, number of moles of B will be weight of B divided by molar mass of B. Okay? से कहिछि जे ए गोटाक मोर बाहर लागे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हला गिवन वेट डब्ल्यू ए बाय एम ए गिवन वेट बाय मोलर मास गिवन वेट अछि x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हला 20 ग्राम पर मोल ठीक अछि ऊपर अछि ग्राम एंड तळे अछि 20 ग्राम पर मोल आंसर मोल ले बाहरिबो आंसर मोल ले बाहरिबो एठी ग्राम रे अछि एटा अछि ग्राम पर मोल तो आंसर बाहरिबो x बाय 20 मोल ग्राम ग्राम कटि जिवो x बाय 20 मोल से कहूछ कि x gram of A contains y atoms x gram of A contains y atoms तार ये जो x by 20 this is equal to y this is equal to y atoms right बेटा this is equal to y atoms जदि मु कहिबी b रो एबे काढिबी b रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b wb by mb given mass by molar mass given mass अछि कते 40 चला यूनिट बसै देबो ग्राम 40 ग्राम मोलर मास होला मोलर मास सॉरी गिवन मास अछि चला गिवन मास अछि 2x ग्राम 2x बाय मोलर मास अछि 40 ग्राम पर मोल बर्तन पे आपको ऊपर a2 कटि गला तले 2 कटिला आसला 20 तमन आसला x बाय 20 मोल x बाय 20 मोल हम टिके पूर्वरु देखि छै x बाय 20 मोल इज इक्वल टू y एटम्स x बाय 20 मोल इज इक्वल टू y एटम्स चला b रो नंबर ऑफ मोल बाहर लगे त x बाय 20 मोल चला x बाय 20 मोल माने दिस इज इक्वल टू y एटम्स answer will be y option b is correct option b is correct okay molar mass is the mass of one mole of a given substance correct element or compound acha okay element or compound नखि तुम जे atom कि molecule कहता better होता more correct होता it tells you how much one mole of atoms molecules or formula units weight okay actually expressed in gram per mole acha unit la gram per mole बेसिकली मोलार मास होची कोन ना 1 मोल मास जो जो जाकर मोलार वर्ड आसीथिबो ख्याल रखियो मोलार वर्ड रो मीनिंग होची कि 1 मोल रो मोलार माने 1 मोल रो तो मोलार मास ता माने 1 मोल रो मास मोलार वॉल्यूम ता माने 1 मोल रो वॉल्यूम मोलार कंडक्टेंस 1 मोल रो कंडक्टेंस जो जो जाकर मोलार वर्ड आसीबो तो संगे संगे जानि दो जे मोलार मींस होची कि 1 मोल रो बुझियो छ कथा तो एक क्वेश्चन आई थिंक बुझी जाइथिबो जदि किछ प्रॉब्लम रहिला को जदि किसी प्रोब्लेम रहिला कुह सीमा प्रधान ओके सीमा प्रधान प्रणाम ratio between mass and amount of substance ratio between mass and amount of substance एमते कहि परिबनि नमिता हां तार फार्मूला हे पारे जे गिवन मास बाय मोलार मास ओके तो देखो इवन नेक्स्ट क्वेश्चन को हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि clear okay so next question is from 22 gram of carbon dioxide from 22 gram of carbon dioxide 3 into 10 to the power 22 molecules of carbon dioxide this is carbon dioxide okay here is carbon dioxide CO carbon dioxide are removed the number of gram molecule of carbon dioxide ले अच्छा ग्राम molecule पहले बुझो तो समझते
ग्राम मोलेक्युल कहले बुझुछ तो क्वेश्चन अछि फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 into 10 to the power 22 molecules of carbon dioxide are removed, the number of a gram molecule of carbon dioxide left. जल्दी करो, क्विक, जल्दी सॉल्व करो, गिव योर आंसर, गिव योर आंसर. ओके बेटा, गिव योर आंसर, आई वांट योर करेक्ट आंसर. जल्दी सॉल्व करो. क्वेश्चन अछि फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेट दे दी 22 ग्राम. तादर केतरा मॉलिक्यूल तुम रिमूव करके नेलो माने काढी के नै गलो, दैट इज 3 into 10 to the power 22. The number of a gram molecule of a carbon dioxide left. Option B. अच्छा, your answer is option B. Okay, okay, your answer is option B. Okay. अच्छा, 27 into 10 to the power 22. Okay. Option C, option C. Okay, option C. Okay, 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 done. Okay, okay, okay. हाँ, तो देखो, तो এটা সলভ করিবা. কହୁଛି କି weight of carbon dioxide दे ଦେଇଛି, weight of carbon dioxide 22 ग्राम. बुझौछ कथाटा. तादर केतरा मॉलिक्यूल काढी नै गलो, मॉलिक्यूल इज गिवन फॉर यू, केतरा रिमूव करिक नै. हम मॉलिक्यूल देछि, मॉलिक्यूल मोटे वेट रू काढीबी कोन, मते बस देखियार अछि कि केतरा मॉलिक्यूल थिला, पर केतरा काढी के नै गलो, आफ्टर दैट केतरा बळी के रहिला. बुझौछ कथाटा. तो थिला कोन 22 ग्राम. हमरे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते हि जिवो, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बटे मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 22 22 बटे कार्बन डाइऑक्साइड मोलार मास इज कार्बन 12, ऑक्सीजन नो 16, 16 प्लस 16, ऑक्सीजन दुटा अछि 32 प्लस 12 44. ओके, ठीक अछि. तो 44 44 आसीबो 0.5 मोल, 0.5 मोल और 1/2 मोल. ओके, ठीक अछि. तो 1 मोल होछि केते, 1 मोल होछि 6.023 into 10 to the power 23. अच्छा, कैलकुलेशन इजी पाई मु कोन करूछि ना, आको नियरली नै जाउछि 6 into 10 to the power 23. तो केतरा मॉलिक्यूल मो पाखरे थिला, केते मोल मॉलिक्यूल अछि 0.25 मोल. 0.25 मोल means कि 0.25 मोल means 3 into 10 to the power 23 molecules. molecules. ओके, जते बेला नंबर ऑफ मोल्स हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काढियार थाए, किंबा कोन नंबर ऑफ एटम्स काढियार थाए, सेते बेला हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.023 into 10 to the power 23 रे मल्टीप्लाई, हमको मिल जिवो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बुझौ छ कथाटा. ताले देखो, ताले मते मिलला 3 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. एते कि थिला मो पाखरे, मु तादर रिमूव कर नेले, काढी नै गले केतरा, केतरा काढी नै गले 3 into 10 to the power 22 molecules काढी नै गले. जहा काढी नै गले ताको माइनस कर दउचे, थिला मो पाखरे 3 into 10 to the power 23 माइनस करजे 3 into 10 to the power 22. तो मु आपको एमते कर दउचे, दिस इज 30 into 10 to the power 22 minus 3 into 10 to the power 22. 10 to the power 22 कॉमन नै गली, मो पाखरे 30 minus 3, 30 minus 3 हे गला कते 27, 27 into 10 to the power 22, 27 into 10 to the power 22 molecules. एतिके molecules मो पाखरे लेफ्ट. अच्छा, ओके, ओके, ठीक अछि. एतिके molecules मो पाखरे लेफ्ट. से कहै छै कि ख्याल रखियो, क्वेश्चन कहै छै द नंबर ऑफ ग्राम molecules. व्हाट डू मीन बाय ग्राम molecules? मो क्वेश्चन करथिले व्हाट डू मीन बाय ग्राम molecules? व्हाट डू मीन बाय ग्राम molecules? व्हाट डू मीन बाय ग्राम molecules? ग्राम molecule कोन? ग्राम molecule कोन? एटी तो मिस्टेक हला ना समस्तଙ୍କର. ठीक अछि. तो देखो, क्वेश्चन जदि कहिथांते जे केतेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मो पाखरे रिमेनिंग रहिबो, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मो पाखरे केते बळी के रहइबो 27 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स मो पाखरे रिमेनिंग रहिला. से कहूछ कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. जदि कोनोस जगह रे
सपोज मु लिखुची ग्राम मोलेक्यूल और लिखुची ग्राम एटम और लिखुची ग्राम आयन जदि कौन जगह तुम एमती लेखा पाइब तुम सांगे सांगे आपको रिलेट करेबो मोल सह दिस मीन्स मोल बुझी मु कहली ग्राम मोलेक्युल्स तामाने मु कहली नंबर ऑफ ग्राम मोलेक्युल्स रिमेनिंग तामाने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलेक्युल रिमेनिंग बुझुछु कथाटा मते एठी नंबर ऑफ मोलेक्युल्स मिली गला आके बे कन्वर्ट करबी नंबर ऑफ मोल्स को केमिति को कन्वर्ट करबी मते कन्वर्ट करयार अछि नंबर ऑफ मोल्स को केमिति कन्वर्ट करबी ना 27 into 10 to the power 22 divided by number of moles को कन्वर्ट करबी केतरा डिवाइड करू 6 into 10 to the power 23 अच्छा आई थिंक ऑप्शन रॉन्ग रही जाय ठीक अछि एटा सॉल्व करले हे जो मो पाखरे केता 27 को काटो 3 रे 3 रे काटला आसला 9 एको 3 रे काटला आसला 2 9/2 and 22 এটা কাটলে তলে মোর গোটে 10 আসিব উপর পড়ে আসলে যে 10 to the power -1 9/2 means 4.5 4.5 into 10 to the power -1 this will be your answer this will be your answer अच्छा ऑप्शन रॉन्ग हो जाय ए केस रे ऑप्शन रॉन्ग हो जाय बट तमे जो आंसर देथिला तमे एठी अटकी जाय तमे कोन मिस्टेक कलो बुझो ठीक अछि कथा ना तमे मिस्टेक कलो तमे आंसर देथिला 27 into 10 to the power 22 molecules which is wrong बुझो अछि कथा तमको जदी कहिथाना केतेरा molecules रिमेन रहिला तमे एठी काढी देला केतेरा molecules थिला माइनस केतेरा molecule रिमूव कलो मिली गला केतेरा molecules बळी के रहिला किंतु से क्वेश्चन करछि कि नंबर ऑफ ग्राम molecules लेफ्ट तबरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecules लेफ्ट बुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट ओके ता माने एठी तुम पाखरे जति कि मॉलिक्यूल्स बोलिक रहिला ताको अगेन हमको कन्वर्ट करियार अछि नंबर ऑफ मोल्स को बुझेला कथाटा डन आंसर विल बी 4.5 into 10 to the power -1 4.5 into 10 to the power -1 will be your correct answer okay नले जदि ऑप्शन ने भी एमति दिबो 4.5 न देखि सिधि दितो 0.45 this will be also correct 0.45 मोल ओके साइज ना 0. ओके तो देखो तुम मिस्टेक को जगह गला जब ऑप्शन टिके मिस्टेक थिला ठीक अछि तमे मते कहि परथांत ना ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन calculate volume of 38 gram of O2 at NTP at NTP at NTP calculate volume of 38 gram of O2 at NTP जल्दी सॉल्व करो तो मते जल्दी को एनटीपी कंडीशन रे हला 1 मोल ऑफ एनी गैस रो वॉल्यूम केते हो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी केते हो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी केते हो जल्दी को 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी केते हो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी केते हो मैं पढ़ै सच्ची ठीक अछि मु स्टेट्स ऑफ मैटर बुझेला बेले बुझै सच्ची 22.4 लीटर 22.4 लीटर ओके तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर देखो এই জিনিসটা আমি তো মোলার ভলিউম বলি কইবা না মু কইলি ভলিউম অফ 1 মোল অফ এনি গ্যাস তো মোলার ওয়াটার মিনিং কোন 1 মোল র তো একই মু কইবি কোন ভলিউম অফ 1 মোল অফ এনি গ্যাস দিস ইজ মোলার ভলিউম ओके दिस इज मोलार वॉल्यूम तो जल्दी क्वेश्चन आंसर को ऑप्शन में नहीं आंसर ऑप्शन में नहीं आंसर देखिए सॉल्व कलर को देखिए ठीक है ऑप्शन में आंसर नहीं अच्छा नहीं ऑप्शन सब मु एबे संग संग बनाई छे सेति में ऑप्शन भी टिके एपट सब हेई थई पारे ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन मु आगुआ बनाई देथिली ऑप्शन एबे ऐड करि छे रिसेंटली जस्ट क्लास पर ओके तो देखो हमें सॉल्व करबे देखिबे ठीक अच्छे देखो क्वेश्चन एठी ऑप्शन ने मोर कोन एपट सब हेला अलगा कथा एग्जाम रे तो एमते हे नथिबो ना हमको तो कांसेप्ट बुझेर अछि बुझो छ कथा देखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 38 ग्राम ऑफ O2 एक्चुअली कथा कोन एठी कोन देछि वेट देछि एंड पचारिछि वॉल्यूम पचारिछि एक्चुअली फार्मूला कोन
तो जदि नंबर ऑफ मोल्स काढियार फार्मूला होचे गिवन वेट बाय मोलार मास हमें तो एटा टिके पूर्व पढ़ी सारछे पुणी आ गोटे फार्मूला देखिला नंबर ऑफ मोल्स काढिबार जे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 जदि एनटीपी कंडीशन देथियो 22.4 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 ओके ठीक अछि वॉल्यूम जहाँ देथियो डिवाइड कर दा 22.4 रे मते वॉल्यूम पचार अच्छा मो ए फार्मूला को इक्वेट करै परिबी इक्वेट करैले मो पाखरे हिजबो जे weight by molar mass is equal to volume by 22.4 this implies मोर तो वॉल्यूम काढियार अछि वॉल्यूम काढियार अछि देन वॉल्यूम रो वॉल्यूम फार्मूला कोन हिजो वॉल्यूम इज इक्वल टू weight गुणा 22.4 बटे मोलार मास weight देछे 38 into 22.4 divided by molar mass O2 कहिछ ना O2 रहि जो 32 ओके एटा सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो आंसर केते आछे अच्छा ओके आंसर केते आसला को 26.6 लीटर ओके योर मते एठी दबार थिला I'm actually 56 लिख देते here will be 26.6 liter and your answer will be option B will correct answer ହେଲା ठीक ଅଛି 26.6 liter is correct answer okay your next question हाँ अच्छा ଗୋଟେ क्वेश्चन रही गला ऊपर एटा करो average molecular mass of a sample containing containing carbon monoxide and carbon dioxide is 32 okay calculate the percentage of carbon monoxide in this sample calculate the percentage of carbon monoxide in this sample carbon monoxide ଆମେ percentage କାढିବା जल्दी सॉल्व करो average molecular mass of a sample containing carbon monoxide and carbon dioxide is 32 calculate a percentage of carbon monoxide in the sample okay जल्दी सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो गोटे मिनिट भीतर आंसर आसियार अछि समस्तଙ୍କର जल्दी से कहूचे कि गोटे कंटेनर रे कार्बन मोनोक्साइड भी अच्छे एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे तार एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे दिछि दैट इज 32 एंड कहिछि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन दिस सैंपल 80% अच्छा ओके साई सोना 75 स्वप्ना 80 ओके रश्मिता 80 उषारानी 80 अच्छा ओके 75 नमिता ओके जल्दी आंसर को you should give your answer more fast more quickly गोटे कंटेनर रे कोन अछि कार्बन मोनोक्साइड अछि एंड कार्बन डाइऑक्साइड अछि ओके त माने दीटा को मिसी के 100% तार एवरेज मॉलिक्यूलर मास देछि 32 calculate percentage of carbon monoxide in the sample okay 75 okay तो देखो मैं आंसर करूचे 75 is the correct answer जो मैंने एती आंसर करिछ कोन भाबी आंसर करछ तो देखो तो बर्तन पे हमें एठी कहिला
जे कोन देछि एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे देछि फर्स्ट थिंग तो हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास रो फार्मूला जाना थिया दरकार कहार कहार ना कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रो वैल्यू देछि 32 एंड पचारे छि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अच्छा जहार परसेंटेज पचारे छि मु ताको x बोली धरि दोछि लेट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड होछि मोर x%। जदि एटा x% हैला ताले का परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते हिचिबो कार्बन डाइऑक्साइड हिचिबो 100 माइनस x%। 100 माइनस x%। ओके ठीक होचे ହେଲା तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास काढियार फार्मूला कोन सुनो जेंति एवरेज मॉलिक्यूलर मास काढियार फार्मूला जेंति का आटम एवरेज एटॉमिक मास काढियार फार्मूला भी सेमति का बुझियो कथा किंतु कथा कोन जते बेले मु एवरेज एटॉमिक मास काढिबी सेते बेले एटम मास नेबी मॉलिक्यूलर मास करला बेले मॉलिक्यूलर मास नेबी बुझियो कथा तो मु जति करिबी एवरेज मॉलिक्यूलर मास मु शॉर्टकट लिखुची एएमएम एवरेज मॉलिक्यूलर मास तार फार्मूला होची मने करा जे मो पाखरे गोटे कंटेनर रे दीटा मॉलिक्यूल अछि के दीटा एटम अछि चाहे भी था गोटे अछि ए आ गोटे अछि बी गोटे अछि ए आ गोटे अछि बी ओके ए रो मास धरा जो स्मॉल ए बी रो मास धरा जो स्मॉल बी ओके ये अछंदे सपोज एटा अछि x% ये अछि x% અને ये अछि धरा जो y% बा मु ए क्वेश्चन ने जदि xy नोची मु एठी mn करि दोची ठीक अछि ताकि तमे कंफ्यूजन हो एटा अछि m% एटा अछि n% हैला सुनो एवरेज मॉलिक्यूलर मास काढियार गोटे फार्मूला अछि जोतरे से कहूची तो यार जो परसेंटेज गोटे रहला m% गोटे रहला n% तुम कोन करो ना m आउ n ना रेशियो नियो हैला m और n ना रेशियो नियो रेशियो नेला पर रेशियो जहा बला रेशियो को नै कि क्वेश्चन सॉल्व करो तो कथाटा होची हम रेशियो को नै कि सॉल्व करले जो आंसर बाहरिबो बुझो से आंसर को हम अगेन पुनी डेसिमल करिया पे हमको पुनी 100 को आसिया को पड़िबो कैलकुलेशन टा लेंदी हेची हैला माने जदी मन करा जो रेशियो बाहरला दीटा कर मास अछि ए आ बी अछि रेशियो अछि धरा जो m:n रेशियो अछि m:n ताले m कहारो ना a रो n कहारो b रो ताले गोटे फार्मूला कहूची जे m इनटू m कहा पई ना a पई नैची ताले आर मास केते ना a m इनटू a प्लस n कहा पई नैची n नैची b पई नैची ता माने n इनटू b रो मास केते स्मॉल b डिवाइडेड बाय m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n एटा गोटे फार्मूला अछि जो तरे कि हमें तार जो परसेंटेज अछि परसेंटेज रो रेशियो नोचे m:n रेशियो ने के सॉल्व करछ बुझियो किना मु कहूछ कि हमें रेशियो न माने डायरेक्ट सॉल्व करबा हला रेशियो ने के करले हमको कैलकुलेशन गोटे स्टेप बढ़ि जिवो हमको सेठी टिके अधिक समय भी नै जिवो हमको तो समय कम करबार अछि ना तो हमें रेशियो न माने डायरेक्ट कोन करबा जति परसेंट देथिबो सेही परसेंट को नै कि हम काम कर दबा हला मन कर जो एटा नै देछि m% ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି n%। ମୋର ରେସିଓ ନେବିନି ମୋର ରେସିଓ ନେବି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଭରେଜ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ କାଢିବାର ଅଛି ଆଭରେଜ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଆଟମ ଏ ର ମାସ ହଉଛି ସ୍ମଲ ଏ ତାହେଲେ ଆଟମ ଏ ର ମାସ ଇନଟୁ କେତେ परसेंट ଅଛି ନା ଧରା ଯୋଉ m% ଅଛି ପ୍ଲସ ଆଟମ b ର ମାସ ହେଲା ସ୍ମଲ b କେତେ परसेंट ଅଛି ନା n% ଅଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 କାହିଁକି ନା ଦିଟାକୁ ମିଶିକି 100% ଥିବ ନା ମୁଁ କହୁଛି କି କଣ୍ଟେନର ରେ ଦିଟା ଆଟମ ଅଛି a ଆଉ b তাহলে দুইটাকে মিশিয়ে কেতে পার্সেন্ট থিবে 100% থিবে তাহলে ডিভাইডেড বাই 100 বাস ডেসিমাল করিয়াको भी इजी হবো বুঝাউছ কথাটা ହେଲା তো ମୁଁ ଏବେ কোন কইলে না ଆମେ ଏବେ কোন କରିବା এই क्वेश्चन रे कार्बन मोनोक्साइड ଅଛି x% कार्बन डाइऑक्साइड 100 माइनस x% कार्बन मोनोक्साइड रो मोलेकुलर मास केते मोलेकुलर मास केते कार्बन रो हे जिवो 12 ऑक्सीजन रो 16 12 प्लस 16 28 28 ओके 28 म्यू तापर कहला कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलेकुलर मास है छिबो कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलेकुलर मास 44 म्यू 44 म्यू ओके तो एबे हम सॉल्व करबा मु कोन करू छै ना एवरेज मोलेकुलर मास नउछि इज इक्वल टू कार्बन मोनोक्साइड रो मास 28 इनटू केते परसेंट अछि ना x% अछि x% अछि प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रो परसेंटेज होला 100 माइनस x आउ तार मास होछि केते ना 44 डिवाइडेड बाय 100
এই গোটা বস্তার average molecular mass তাহলে average molecular mass আসলে মোর কেতে না 28x প্লাস ইয়াকু সলভ করলে এই যে 4400 minus 44x divided by 100 and our value ଦେଇଛି 32 value ଦେଇଛି 32 हमको बस এই ইকুয়েশন को सॉल्व করিবার আছে এই ইকুয়েশন को सॉल्व करके कार्बन मोनोऑक्साइड परसेंटेज हम x रहिছে तमे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड ही पचारिছে हमको x ର वैल्यू काढियार ଅଛି তাহলে x ର वैल्यू काढी देले मते आंसर मिलिଯିବ yes or no yes or no बुझियला क्वेश्चन you got it I think you got it okay done खत्म जीवा को बस ये इक्वेशन को सॉल्व करियार अछि 28x plus 4400 minus 44x divided by 100 is equal to 32 এই ইকুয়েশন को सॉल्व करियार अछि एतरो x रो वैल्यू काढियार अछि x रो वैल्यू काढि देला हमको हम क्वेश्चन रो आंसर मिलि जिवो करेक्ट यस सर ओके ओके योर नेक्स्ट क्वेश्चन को next question. Calculate number of oxygen atoms in carbon dioxide gas which occupies 122 milliliter. Sorry, 112 milliliter at STP. Volume ଦେଇଛି 112 milliliter. କୋଉ condition? NTP condition. କାହାର? Carbon dioxide. ପଚାରିଛି କଣ? ନା number of oxygen atoms. Number of oxygen atoms. जल्दी solve करो. जल्दी solve करो. हाँ काल्कुलेसन जते समय लगे बाकी तो सब किसी आम हाथ में अच्छे बुझे काल्कुलेसन केते स्पीड करि परबो सेटा तम ऊपर डिपेंड करे ओके साई सुनना देखो तुमको दुईटा को प्रोसेस कहीदेले तुमको जोटा रे तुम इजीली करि परिबो कम टाइम टेकिंग रे करि परिबो सेमति करो यदि रेशियो बाहर करि करिवो करो अदरवाइज यदि रेशियो बाहर करि करिवोनी देन 100 रे डिवाइड कर दियो काम खत्म आज योर विश ओके साई सुनना जहार मास सह तार रेशियो तार परसेंटेज रो रेशियो टा को मल्टीप्लाई करिवो बस मल्टीप्लाई करी दुईटा को ऐड करिवो एंड रेशियो दुईटा को ऐड करके डिवाइड कर दबो तले दैट्स इट सिंपल बुझियला साई सुनना बुझियला ना किछि कहिबी मो बारे सरिला कि ना किछि कहिबार अछि मते ए क्वेश्चन आंसर कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in carbon dioxide gas which occupies 112 milliliter at NTP okay at NTP your answer is 6 into 10 to the power 21 okay okay समस्त आंसर बाहर ऑप्शन ए लेट मी सॉल्व वॉल्यूम दे देछे मिलीलीटर रे देछे ओके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पचारे फर्स्ट मु नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 करि दोछ एनटीपी कंडीशन में वॉल्यूम अछि 112 डिवाइडेड बाय एटी एटा मिलीलीटर रे अछि ता माने एनटीपी कंडीशन में 1 मोल वॉल्यूम 22.4 लीटर वो मिलीलीटर कर देबी 22400 22400 सॉल्व कर एठी आसिला 1 एंड एफ काटिगला आसिला 200 पळे आसिला 1 by 200 मिली जो 1 by 200 हे गला मोर 1 by 200 एटा हला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोन कार्बन डाइऑक्साइड बुझे छ कथा एति कि मोल मिलेला एबे मोल को कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स मिली गला यार से कहै छै नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिसन गोटे कार्बन डाइऑक्साइड दुटा ऑक्सीजन एटम ताले एति कि मोल कार्बन डाइऑक्साइड केतेटा ऑक्सीजन एटम थिबो आर ट्वाइस ता माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होई जिवो केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होई जिवो 2 into but 2 into कले 2 by 200 पळे आसीबो which will be 1 by 100 mole 1 by 100 mole oxygen atom 1 by 100 mole को मु कन्वर्ट करबी नंबर को केमिति कन्वर्ट करबी ना 1 by 100 मोल जगह पुट करबी 6.023 into 10 to the power 23 मु कैलकुलेशन इछि पे 6 नै जाउ नियरली इक्वल टू 6 नै जाउ ओके एमति नियरली इक्वल करा जाई पारिबो दिस इज अलाउड ओके ताले एठी अछि 100 डबल जीरो कटेला एठी 0 0 कटे की पळे आसबो 21
0 0 कटिके पळे आसो 21 रहला 6 into 10 to the power 21. This will be correct answer. Option A is correct. Option A is correct. Your next question को next question solve करो. Weight of 600 milliliter of O3 and O2 at NTP is 1 gram. ठीक अच्छे कारण से दीटा गैस रो मिक्सचर देछि ओजोन गैस एंड ऑक्सीजन गैस O3 एंड O2 रो मॉलिक्यूल नेछि जोटार वॉल्यूम दे देछि से मिक्सचर रो वॉल्यूम दे देछि 600 मिलीलीटर कहिछि एनटीपी कंडीशन रे हला तार वेट अछि 1 ग्राम वेट अछि 1 ग्राम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O3 इन द मिक्सचर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O3 इन द मिक्सचर जल्दी सॉल्व करो O3 का वॉल्यूम पचारिछि जल्दी सॉल्व करो गिव योर आंसर टू मी ओके जल्दी सॉल्व करो हमें टुमारो विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर रो क्वेश्चंस करिवा बाकी आउ किछि क्वेश्चंस मु तमरो करइ देबी हाइड्रोकार्बन अल्केन पार्ट सरिथिला अल्किन और अल्काइन रो अल्किन अल्काइन एंड एरोमेटिक बेंजीन रो ओके ए तीनटा रिलेटेड टू क्वेश्चंस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर रो क्वेश्चंस करइ दबा ठीक अछि ओके जल्दी weight of a 600 milliliter mixture of O3 and O2 at NTP is 1 gram. Find the volume of O3 in the mixture. Quick. Option wrong আছে I don't think so. अच्छा ओके तम आंसर केते भला सेटा चैट बॉक्स रे कहि दियो ठीक अछि जदि तुमको लागु ऑप्शन रंग अछि बोली हेइ थाई पारे तम आंसर केते भला चैट बॉक्स रे कहि दियो ठीक अछि सेते बेले मु सॉल्व करबी सेते बेले जणा पड़िछिबो ओके डन डन सही सुनना तम आंसर केते भला चैट बॉक्स रे कहि दियो 200 मिलीलीटर होछि ओके 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर ओके नियरली इक्वल वैल्यू तो एई गोटा के अछि ना एई गोटा तो तार नियरली इक्वल वैल्यू अछि 199.12 0.2 लीटर ओके जदि 200 मिलीलीटर अछि देन तमे आई थिंक कोटा नियरली नै जाइथिबे कि कोन किछि भी हे पारे बुझौ छै एठी क्लोज वैल्यू कोटा अछि 199.12 व्हिच इज वेरी क्लोज टू 200 ओके देखो हम एबे सॉल्व करू छै कहै छै weight of 600 milliliter of O3 ଆଉ O2 ର वॉल्यूम मिसी के अछि केते 600 milliliter and weight of 600 milliliter of O3 and O2 at NTP each 1 gram दीटा कर weight होची मिसी 1 gram वॉल्यूम पचारि छै राइट लिसन वर्तमान भाई वॉल्यूम पचारि छै कहार O3 रो यार वॉल्यूम पचारि छै सपोज मु नै जाउ छै वॉल्यूम ऑफ O3 वॉल्यूम ऑफ O3 होची V मिलीलीटर V मिलीलीटर ओके O3 पचारि छै ना करेक्ट O3 पचारि छै वॉल्यूम ऑफ O2 देन केते हे जेबो दीटा को मिसी के तो 600 ताले 600 माइनस V मिलीलीटर 600 माइनस V मिलीलीटर ओके दीटा कर वॉल्यूम मिली गला
କହିଛି ଦିଟାକର ୱେଟ୍ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଯିବ ରେ 1 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କାଢିବା କେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ୱେଟ୍ ବାଇ ମୋଲାର ମାସ୍ ବରାबर ଭଲ୍ୟୁମ ବାଇ 22400 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ୱେଟ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ହବ ଏଠୁ ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ ୱେଟ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ ଏଠି ମୁଁ ମିଲିଲିଟର ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛି ଭଲ୍ୟୁମ ବି ମୋର ଇନ୍ ମିଲିଲିଟର ଓକେ ଓକେ। ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ ମୋଲାର ମାସ୍ ଗୁଣା ଭଲ୍ୟୁମ ଇନ୍ ମିଲିଲିଟର ଗୋଟେ 22400 ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ମୁଲା କରେକ୍ଟ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫର୍ମୁଲା। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି weight of O3 plus weight of O2 बराबर 1 gram बराबर 1 gram. This implies weight of O3 formula केते ହେଇଯିବ रे molar mass of O3 गुणा volume of O3 बटे 22400 plus weight of O2 molar mass of O2 गुणा volume of O2 बटे 22400 बराबर 1 correct this implies molar mass of O3 the molar mass 16 48 right 48 this will be 48 गुणा volume of O3 केते नेचर हमें volume of O3 होची V divided by 22400 plus molar mass of O2 32 गुणा volume of O2 नेचर हमें केते 600 minus V बराबर ए बटे 22400 is equal to 1 there this will be 48V plus 32 into 600 केते हो 32 into 600 केते हो 32 into 600 1900 so 19200 minus 32 V बराबर 22400 this implies 48V minus 32V केते हिजबो रे केते हिजबो हां 16V is equal to 22400 एटा चपटो गले माइनस हबो माइनस 19200 एई गोटा को तो सॉल्व करियार अछि ना बुझौ छ एटा को तो सॉल्व करियार अछि सॉल्व कर देले भी मिलि जिवो करेक्ट एटा सॉल्व कर देले भी मिलि जिवो बस एटा को तो सॉल्व करियार अछि आई थिंक यू कैन डू इट ओके ए गोटा को सॉल्व कर दियो ताले सेटा सॉल्व करले हे गला 16V बराबर 3200 दिस implies V is equal to 3200 बटे 16 आंसर है जो 200 आंसर will be 200 milliliter option C is correct okay ठीक ଅଛି option C is correct option C is correct ओके जदि ऑप्शन तुमको लिटर रे देथांता देन लिटर रे सॉल्व करथांता अच्छा ओके आउ थे पड़े आसला 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सॉरी गला से क्वेश्चन जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज 5.6 liter at NTP okay calculate vapor density of the gas सर क्लास रे छै क्लास पर को छै ऑनलाइन क्लास रे छै जल्दी सॉल्व करो 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज 5.6 liter at NTP हाँ यस अप्रोक्सीमेटली नहीं छिबो ओके सही सुन ना ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो
क्विक 32 योर आंसर इज 32 देखो मुझे किसी एडिशनल कहया तुमको चाहूँ जदि मुझे भी डेंसिटी डेंसिटी को मु दी प्रकार डेंसिटी डिवाइड करछे गोटा आसी मोर एब्सोल्यूट डेंसिटी आ गोटा आसीबो रिलेटिव डेंसिटी ओके absolute density you know it very well absolute density will be what density kono mass upon volume mass by volume this is absolute density mass by volume is your absolute density okay your all answer is 32 you are correct la absolute density or symbol hela rho rho is equal to mass upon density ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ରିଲେଟିଭ ଡେନ୍ସିଟିର କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ରିଲେଟିଭ ଡେନ୍ସିଟିର ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଦେଖ ରିଲେଟିଭ ମିନ୍ସ କି ତମେ ଜଣଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟିକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ସହ ରିଲେଟ କରାଇ ମାନେ ଏଠି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 2 ତ ସପୋଜ ତମକୁ ପଚାରିଲା ରିଲେଟିଭ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 1 ତ ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡେନ୍ସିଟି density ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି rho density of a substance 1 divided by density of a substance 2 तो आंसर ए होगा density of a substance 1 divided by density of a substance 2 ओके डन हला तो देखो जे वर्तमान ପାଇଁ जदि एई जो सब्सटेंस दीटा को जदि एटा लिक्विड हेतो मु लिखि ए साइड को ए कॉर्नर को लिखि दउची ए कॉर्नर को लिखि दउची चलो जदि सब्सटेंस तम पाकर हेतिबो लिक्विड ठीक अच्छे ख्याल रखिए जब लिक्विड हेतिबो आ पचारला तार रिलेटिव डेंसिटी पचारला ता माने रिलेटिव डेंसिटी इज कोन ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 माने रिलेटिव डेंसिटी कहार पचारिछि जहार पचारिछि ताको ऊपर नबा सपोज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 पचारिछि त माने ऊपर नेबे लिक्विड 1 रे डेंसिटी तळे नेबे लिक्विड 2 रे डेंसिटी কথা হচ্ছে কি যদি तुमको ओनली वन लिक्विड इज गिवन তাহলে কোন করে যদি গোটিয়ে লিকুইড দেইथिबो যদি গোটিয়ে লিকুইড দেইथिबो ইফ ओनली वन लिक्विड इज गिवन ओनली वन लिक्विड इज गिवन चला তাহলে কোন করিবো না तुमको मन कर जो गोटिए लिक्विड देइছে और तुमको तार बचाला रिलेटिव डेंसिटी তাহলে তুমি ऊपर नबो डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय तुमको आ गोटे डेंसिटी कोन कहिने ना बुझिउछ कथाटा तुम से जगह ताकू नैथिबो डेंसिटी ऑफ वाटर ओके तुम ताकू नैथिबो डेंसिटी ऑफ डन हला ओके डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ख्याल रखिबो वाटर डेंसिटी हमें नो at 4 डिग्री सेल्सियस हला बुझिउछ कथाटा 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस रे वाटर डेंसिटी हे जिवो 1 ग्राम पर मिलीलीटर 4 डिग्री सेल्सियस रे डेंसिटी ऑफ वाटर हे जिवो 1 ग्राम पर मिलीलीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोली मध्य कहছে तापर कहला जे वेपर डेंसिटी कथाटा कोन जदि तुम पाखर जो सब्सटेंस देखियो से सब्सटेंस हेतिबो गैस ताला कोन करिवो मु रिलेटिव डेंसिटी केते हेजिवो ना डेंसिटी ऑफ मन कर जो गैस 1 न पचारे डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 दिस विल बी बट जेतेबेले गैस 2 तुमको देनी गैस 2 तुमको देनी तुम से जगह कोन करे जेतेबेले गैस 2 तुमको गिवन नाही हला जदि अन्य कौन से गैस नहीं ताले गैस 2 जगह तुम नैथिबो हाइड्रोजन गैस H2 गैस करेस्पोंडिंग रे सब बेले आंसर दबो आउ मन रखि था जेते बेले गोटे सिंगल गैस देते माने गोटे गैस तो आरो गैस तो देना तो मु कहले H2 करेस्पोंडिंग रे आंसर दबो तो H2 करेस्पोंडिंग रे तुम तो कोन कहबो तो जदि गोटे सिंगल गैस देचे फॉर सिंगल गैस वेपर डेंसिटी रो फार्मूला हेतिबो तार मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 हला ए फार्मूला रे डेरिवेशन गैसियस स्टेट चैप्टर रे थाए एबे केवल तुम फार्मूला टा मन रखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बाय 2 ओके मोलार मास बाय 2 ताले क्वेश्चन में दे दिछि 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस किछ भी गैस
occupies 5.6 liter at STP volume ଦେଇଛି 5.6 liter ହେଲା calculate vapor density okay vapor density of the gas ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା vapor density ଫର୍ମୁଲା ହେଲା molar mass by 2 molar mass କାଢିବ କେମିତିକା ଟିକେ ରୁହ देखो मोलार मास काढिबा केमतिका हमको दे देछि गिवन वेट दे देछि एंड एनटीपी कंडीशन रे वॉल्यूम दे देछि तो मोलार मास हमें काढिबा फार्मूला थिला वेट बाय मोलार मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय एनटीपी कंडीशन रे 22.4 हमको वॉल्यूम देछि 5.6 लीटर तापरे गिवन वेट देछि 16 ग्राम मोलार मास ए फार्मूला यूज करके तमे काढिबो मोलार मास वेपर डेंसिटी पचारिछि मोलार मास को 2 रे डिवाइड करिवो वेपर डेंसिटी मिलि जिवो ओके Okay, done. Next question. 16.5 gram of metal combines with oxygen and form 35.6 gram of its oxide. Calculate the percentage of oxygen in the metal oxide. से कहूँ कि आमे गोटे मेटाल नहींचे आमे गोटे मेटाल नहींचे से मेटाल रिएक्शन करूचे ऑक्सीजन सह एंड तार कॉरेस्पोंडिंग मेटाल ऑक्साइड दोछ मेटाल ऑक्साइड दोछ बुझियोछि पहिला 16.5 ग्राम रो मेटाल वेट अछि 16.5 ग्राम ऑफ मेटाल combined with oxygen and form 35.6 ग्राम रो मेटाल ऑक्साइड calculate percentage of oxygen in the metal oxide जल्दी सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन मेटल दे दीची 16.5 ग्राम रो एंड रिएक्शन करिছে ऑक्सीजन सह ठीक अछि माने से केते ऑक्सीजन सह रिएक्शन करथिबो तार जो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करथिबो से मेटल ऑक्साइड रे ऑक्सीजन केते परसेंट अछि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मेटल ऑक्साइड जल्दी आंसर करो ओके साई सोना ओके साई सोना का आंसर होची 53.6% केपी ऑप्शन ए ओके केपी ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट उषाराणी 53.6 सिपुन 53% ओके सिपुन नमिता ऑप्शन ए ओके नमिता जल्दी सॉल्व करो बाकी समस्त एक्टिव रो ठीक अछि जल्दी को ओके तुम आंसर है सरची 53.6% हला ए क्वेश्चन सॉल्व करबा केमते का हम अप्रोच कोन थिला फर्स्ट कथा कि हमको काढिबार थिला ए जो मेटल ऑक्साइड अछि मेटल ऑक्साइड वेट दे देछि 35.6% केते देछि 35.6% ताले एक्चुअली एठी गोटे कंपाउंड रे गोटे कंपाउंड जहां भी एटम्स थिबो कि जहां भी एलिमेंट्स थिबो तार परसेंटेज काढियार फार्मूला कोन ना परसेंटेज सपोज मु गोटे एलिमेंट रो काढुची ता पे ई लिखुची कोउतने ना गोटे गिवन कंपाउंड रे काढुची ताल तमे काढिबार अछि से कंपाउंड से जो एलिमेंट बा एटम तो तार कंट्रीब्यूशन केते तार वेट केते डिवाइडेड बाय weight of a compound into 100 this will be formula ओके दिस विल बी फार्मूला ए फार्मूला टा पुट करियार अछि तने हमको काढियार अछि मेट ऑक्साइड रे हला मेटल ऑक्साइड तो वेट दे दैछि किंतु आदर वेट ऑफ ऑक्सीजन केते ए गोटा का काढ देला त आंसर हे गला ए गोटा काढ देला बस एठी तो कथा ठीक अछि
ହେଲା ତ याकू सॉल्व करिया पे हम गोटे कांसेप्ट यूज करिया को पड़िबो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेसिकली से एक कथा कहया चाहूँ जे the reactant site of total mass equal with the product site of total mass पुणे रिएक्टेंट साइड रे मेटल तो वेट रिएक्ट करथिबो 16.5 ग्राम रो किंतु ऑक्सीजन केते वेट रिएक्ट करथिबो हम जानने ना तो कोन करबा हला तो बर्तन पे कथरा होची कि एठी वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड वेट ऑफ metal oxide this is due to law of conservation of mass total mass of reactant बराबर total mass of product ओके ताले वेट ऑफ ऑक्सीजन केते कर देबो हमें ना 30 वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें कर देबा केते 35.6 माइनस 16.5 आंसर जहां बाहरिला तुम आंसर जहां बाहरिला बस सेही गोटा पुट करियार अछि मु काढिबी परसेंटेज कहारो ना ऑक्सीजन न काढिबी कोउतरे ना मेटल ऑक्साइड जहार वेट काढिबी ताको ऊपर नेबी जो थेरे काढिबी ताको तळे नेबी 100 गुणा कर देबी काम खत्म वेट ऑफ ऑक्सीजन बटे weight of a compound, weight of a metal oxide into 100, you will get your answer. You will get your answer. Answer will be 53.6%. Okay, done. ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को सॉल्व करिया काम तमरा थोड़ी ना मु छोटो छुआ ହେଇଛ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି सॉल्व कराइबी ओके तापर कहला हिमो अच्छा ऑप्शन मु देइन ओके hemoglobin contains 0.25% of iron hemoglobin contains 0.25% of iron if molar mass of hemoglobin ख्याल रखिबो ठीक अछि मोलारिटी ପାଇଁ भी कैपिटल एम लिखा जाए मोलार मास ପାଇଁ भी कैपिटल एम लिखा जाए चला सब वाला लाइफ रो गोटे जिंस मन रखिथिबो योर एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर बुझियो जे कथाटा तो काहे के काहे के टीचर्स माने कोनते क्वेश्चन सॉल्व कर बोली ताकि यू मस्ट गेन सम एक्सपीरियंस एमती नो मु एट जो क्वेश्चन सॉल्व करू एग्जैक्ट ए क्वेश्चन बोर्ड रे पळे आसबे कि सॉरी एग्जैक्ट ए क्वेश्चन तुम एग्जाम रे पळे आसबे सेमती कोनोस तो गारंटी नै ना बट व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल गेट सम एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस तुम निज एक्सपीरियंस रे जानिबो जे जदी कैपिटल एम लिखुची को जगह रे मोलारिटी पय लिखुची को जगह रे मोलार मास पय लिखुची बुझियोची तो एठी मास सरे डिस्कशन चलची मोलार मास पय लिखिची इफ काहे कि एठी यूनिट का ग्राम पर मिलीलीटर देची ग्राम पर मिलीलीटर कहार यूनिट मोलार मास रे यूनिट if molar mass of a hemoglobin is 89,600 gram per milliliter as a gram per mole sorry gram per mole unit is gram per mole then calculate number of iron atoms present per molecule of hemoglobin jaldi solve karo don't be late we have to move fast jaldi solve karo okay So okay, zero hemoglobin contains 0.25% iron. Correct, 0.25% iron. If molar mass of a hemoglobin is 89600 gram per mole, then calculate number of iron atoms present in it. Huh, very good. Your answer is 4. Number of iron atoms, your answer is 4. 4 is correct answer. Okay. तो देखो सी मोलार मास दे देचे कौन देचे मोलार मास कहिचे कि गोटे हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रे आयरन केते परसेंट थाए 0.25% बोली कहिचे ठीक अछि ता माने परसेंटेज ऑफ आयरन इन हिमोग्लोबिन केते हिजबो ना वेट ऑफ आयरन बटे
weight of iron बटे weight of hemoglobin गुणा 100 बुझे मु गोटे मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिव रे नउचे ता माने एठी मोलार मास नै जेबी ता मोलार मास नै जेबी एठी मोलार मास नै जेबी मोलार मास ऑफ hemoglobin ओके ताले weight ठीक अछि तो परसेंटेज वैल्यू केते दैছে 0.25% 0.25% ओके 0.25 वैल्यू दैছে 0.25 तो देखो तो एटा केते गला weight of iron divided by molar mass 89600 molar mass ଅଛି 89600 ग्राम पर मोल ता माने गोटे मोलेकुलर मास केते हिजिवो 89600 म्यू ठीक अछि गोटे मोलेकुलर मास केते 89600 म्यू ग्राम हटे कि बस म्यू लगे दवर अछि मोलेकुल पे पचार छै वे हां ताले दिस इनटू 100 बराबर परसेंटेज देछि 0.25 तो तुमको एटा सॉल्व कला परे ए इक्वेशन सॉल्व कले तुमको मिली जिवो वेट ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल गोटे मॉलिक्यूल ला आयरन नो वेट केते मिली जिवो ठीक अछि नंबर ऑफ आयरन एटम्स करियार अछि नंबर ऑफ आयरन एटम्स में कोन करबो ना वेट ऑफ आयरन in one molecule divided by weight of one iron atom that is atomic weight of iron atomic weight है 56 divide कर देला तम आंसर आसीबो 4 ओके डिवाइड कर देला तम आंसर आसीबो 4 डन ओके तो देखो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि एटा गोटे स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन दे देला सिंगल रिएक्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन देला रिएक्शन देछि 2KClO3 reacts with 2KCl 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2 I mean it's 2KClO3 gives 2KCl along with 3O2 पचार calculate moles of KCl KCl and O2 KCl और O2 रो नंबर ऑफ मोल्स केते प्रोड्यूस हो पचारि छै एंड हमको देइ छै KCl O3 रो वेट दे देइ छै केते 367.5 ग्राम जल्दी सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो KCl O3 रो वेट दे छै रिएक्शन दे छै कहै छै KCl आउ O2 केते मोल्स रे प्रोड्यूस हेबे ओके number of moles of KCl and number of moles of O2 केते पचारि छै this is asked okay जल्दी सॉल्व करो डेटा करो नंबर ऑफ मोल्स काढा क्विक ऑप्शन दे देबे यार कोन कहउछ कहबो जे दे देबे ऑप्शन अदरवाइज निजे सॉल्व करे ट्राई मोटे गोटे वर्ड ऐड करले रेस्पेक्टिवली ऑप्शन चारटा दे दउछ 3 and 4.5 ऑप्शन बी
4.5 and 3. Option C 9 and 3.5. Option D 3 and 9. 3 and 9. The number of mole of KCl 3 moles. O2 4.5 moles. Okay. 3, 4.5. Okay. Okay, Saisonna, Sanvi, Usarani. You are correct. 3 and 4.5 is correct answer. Option A, Archana, option A is correct. Okay. देखो. Okay. देखो. तो मैं सॉल्व करूँ जेबे. ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पे हमर एटी गोटे नुवा कांसेप्ट रो रिक्वायरमेंट पड़ला दैट इज मोल एनालिसिस. ओके, दैट कांसेप्ट इज मोल एनालिसिस. तो देखो KClO3 रो वेट दे देचे. वेट देचे हमरा एटी दरकार पड़िबो तार नंबर ऑफ मोल. वेट टू नंबर ऑफ मोल केमिति कन्वर्ट करिवो यू नो इट वेरी वेल. वेट देचे नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट करियार अछि कोन करिवो हम वेट बाय मोलार मास. वेट देचे 367.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास. KClO3 रे केते हिजो KClO3 रे मोलार मास हला क्लोरीन 35.5. ओके, ऑक्सीजन हला 16 48 plus 35.5 plus 39 plus 39. Answer will be 120 122.5 122.5. ओके, ठीक अच्छे. आर करते फ्लोरीन 35.5, पोटासियम रो 39 एंड ऑक्सीजन रो 48. आर कले सो 122.5 122.5. ओके. तो देखो मु गोटे काम कर मोर स्पेस दरकार अछि मु ऑप्शन एट लिभेई दउछि हला. देखो ताले रिएक्शन थिला 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. एटी KClO3 ର नंबर ऑफ मोल्स मिलिगला 3 मोल. हमको KCl एंड O2 ର नंबर ऑफ मोल्स काढियार अछि. कोन करिवो देखो जेते बेले एस टाइप रो क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स जनकर देथिबा आ जनकर काढियार अछि. ए टाइप रो क्वेश्चन जेते बेले सॉल्व करिवो सबु बेला टेक्निक अप्लाई करिवो मोल एनालिसिस. ओके, ये एमती मैनुअल करिक माने मु पाटे बाटे हिसाब करिक भी काढी परिबे. बट हम पई सबु इजीएस्ट हला हमें अप्लाई करबे मोल एनालिसिस. जेते बेले मोल एनालिसिस यूज करिवो सबु बेले ख्याल रखिथिबो तुमको जो रिएक्शन देचे रिएक्शन सब बेले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हेथिबा दरकार. ठीक अछि कथाटा हल. ओके, तो मोर आंसर सॉल्व करिया भीतर चैट बॉक्स रे तुम मते जणा जे व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन. हम गोटे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करबा केमते व्हाट इज द नीड हला. तो एबे क्वेश्चन को देखिबा केमिते मोल एनालिसिस में अप्लाई करिवे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3. देखो रिएक्शन दा बैलेंस अछि ना नै पोटासियम देटा क्लोरीन देटा ऑक्सीजन छटा रिएक्शन बैलेंस अछि. नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि 2 is stoichiometric coefficient is equal to number of mole of KCl divided by stoichiometric coefficient 2 is equal to number of mole of O2 divided by stoichiometric coefficient 3. याको ही सॉल्व करियार अछि. ओके, ठीक अछि. तो सॉल्व करा मो पाखर अछि नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 by 2 is equal to number of mole of KCl by 2. तमने नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl हे जिवो KCl हे जिवो 2 कटि गला रहिला इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3. नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 होची 3 मोल. तमने नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl हे गला 3. नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl हे गला 3. ओके डन. तापरे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 केते हिचिवो एई फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 केते हिचिवो ना नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 into 3 divided by 2. नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 into 3 divided by 2. ताले 3 into 3 हे जिवो 9. नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 हला 3 मोल. 3 into 3 हला 9 by 2 9 by 2 हे जो 4.5 मोल. Your answer will be 4.5. Yes, you are correct to obey law of conservation of mass. To obey law of conservation of mass, we need to balance a chemical reaction. Okay, the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन देला 2a gives 3b plus 5c पचारे कैलकुलेट मोल्स ऑफ ए कौन पचारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए केते पचारे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ सी सी केते मोल प्रोड्यूस होबे ना 7 मोल एबार आंसर जल्दी सॉल्व करो अप्लाई करो सुनो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन तमे हाइपोथेटिकल रिएक्शन रे बैलेंस है कि नहीं चेक करले हबनी बुझियो कथाटा हला ठीक अच्छे तुम कह सर एपटे ए दीटा अच्छे एपटे ए जमा ना सेमती देखने हेनी निजर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये जमती देची बस सेमती आम बैलेंस बोली मानिक चलवा ए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 एंड सी अच्छी 5 मन रखिथा जो जाए गोटे केमिकल रिएक्शन बैलेंस हेनी सेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नबार कोनोसी सेंस ही नहीं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज नो मीनिंग फॉर ए अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन okay to often to gain this stoichiometric coefficient we need to balance the chemical reaction first okay और आंसर करो 2.8 अच्छा देखो ताले कहार नंबर ऑफ मोल दरकार अछि ए रो हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 एटा तो सॉल्व करियार अछि ताले this implies number of moles of A बराबर number of moles of C into 2 divided by 5 number of hmm, hmm, A ର stoichiometric coefficient ଅଛି 2 C ର ଅଛି 5 number of moles of A ହେଇଯିବ number of moles of C into 2 by 5 number of moles of C ହେଇଗଲା କେତେ 7 mole into 2 by 5 14 14 बटे 5 14 बटे 5 सॉल्व कले जहाँ हबो ठीक अच्छे 14 बटे 5 2 पॉइंट अच्छा ओके ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन calculate mass of H2SO4 required to neutralize 11.2 gram of KOH reaction दे दीजिए calculate mass of H2SO4 required to neutralize 11.2 gram of KOH जल्दी सॉल्व करो तो रिएक्शन भी दे दीजिए जल्दी सॉल्व करो कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 required to neutralize 11.2 gram of KOH नाइनटीन पॉइंट सिक्स ग्राम अच्छा ओके जल्दी सॉल्व करो 19.8 अच्छा ऑप्शन किसी भूल लिखिदेले कि नहीं ठीक तो अच्छे अच्छा देखिबा कौन होचे सॉल्व कला देखिबा कौन होचे 19.6 ग्राम ओके 9 अच्छा सॉल्व करियो रिएक्शन देचे KOH calculate mass of H2SO4 required
11.2 ग्राम रो KOH देछि प्लस H2SO4 gives K2SO4 along with H2 ओके। फर्स्ट कथा कि रिएक्शन बैलेंस अछि कि रिएक्शन बैलेंस अछि कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं। KOH रो वेट देछि 11.2 ग्राम 11.2 ग्राम। रिएक्शन बैलेंस नहीं पोटेशियम सेपटे दुईटा एपटे गोटे एटी 2 रे मल्टीप्लाई हबो। एबे चेक कर एपटे पोटेशियम दुईटा ऑक्सीजन एठी दुईटा एठी चारिटा 4 2 6 एपटे ऑक्सीजन हे गला चारिटा एपटे गोटे अछि त माने एठी 2 रे मल्टीप्लाई कर दोछि 6 टा हे गला। तापर अछि कोन हाइड्रोजन एपटे दुईटा चारिटा एठी हाइड्रोजन हे गला चारिटा एबे बैलेंस हे जाइथिबो। सल्फर गोटे गोटे पोटेशियम दुईटा ऑक्सीजन 2 4 2 6 4 2 6 हाइड्रोजन दुईटा एंड दुईटा चारिटा सल्फर गोटे ହେଲା। ठीक अछि कथाटा आई थिंक जो मानकर 19.6 समथिंग बाहरुची बुझै छ कथाटा ହେଲା। तमे बैलेंस न करके कर देथिबो सांग सांग एबे कहले सांग सांग मिस्टेक करी छै देलो। देखो कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 H2SO4 रो मास पचारिछि मास काढिया पे हमर दरकार कोन नंबर ऑफ मोल्स काढिया बोतल KOH रो मास देछि नंबर ऑफ मोल देने नंबर ऑफ मोल काढिया नंबर ऑफ मोल हेजिबो तारा गिवन मास 11.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास केते हेजिबो पोटेशियम रहला 39 हाइड्रोजन 1 40 प्लस ऑक्सीजन रहला 16 56 हैला 11.2 बाय 56 कैलकुलेट करले केते होची 11.2 by 56 এটা হয়ে যাচ্ছে 1/5 হয়ে যাচ্ছে না ওকে 1/5 হয়ে যাচ্ছে ওকে। तापर देखिबा नंबर ऑफ मोल हे गला 1/5 H2SO4 नंबर ऑफ मोल केते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH by stoichiometric coefficient 2 is equal to number of मोल ऑफ H2SO4 by stoichiometric coefficient 1 बुझे होची सामान्य एटे कोन हे गला दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 बराबर 1/5 by 2 this will be 1/10 नंबर ऑफ मोल मिल गला। एबे वेट काढियार अछि मोलार मास केते होबो ना मोलार मास ऑफ H2SO4 हे जिवो केते 98 हे जिवो 98 ग्राम पर मोल हला ग्राम पर मोल ओके। ताले एबे वेट केते हे जिवो ना नंबर ऑफ मोल हैला 1/10 मल्टीप्लाई कर देले मोलार मास रे 98 हे गला 9.8 ग्राम आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर डन। The next question, what weight of a calcium bicarbonate should be heated to obtain 2.4 into 10 to the power 23 2.4 into 10 to the power 23 molecules of a carbon dioxide calcium bicarbonate देछि CaHCO3 whole 2 CaHCO3 whole 2 calcium bicarbonate ହେଲା ठीक আছে। आपको हमें हीट कला पर मिलला कैल्शियम कार्बोनेट along with water along with carbon dioxide पहिला व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट माने बेसिकली तुमको पचारुछ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रो वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल 2 आरो वेट केते पचारि हला शुड बी हिटेड टू ऑब्टेन 2.4 into 10 to the power 22 कार्बन डाइऑक्साइड रो केतरा मॉलिक्यूल्स कहै छै 2.4 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दै छै जल्दी सॉल्व करो। से क्वेश्चन ने किछ नहीं बहुत इजी क्वेश्चन अछि कार्बन डाइ फास्ट चेक करबो रिएक्शन बैलेंस अछि ना नहीं कैल्शियम सेपटे गोटे हाइड्रोजन दुईटा कार्बन दुईटा ओके ऑक्सीजन अछि 6 टा ऑक्सीजन 3 4 5 6 6 टा अछि ओके रिएक्शन बैलेंस अछि ठीक अछि। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देछि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बर्तमान पे मोल डिवाइड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते काढो कोन काढो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यार कांसेप्ट क्वेश्चन करि सरछ बुझिछ कथाटा कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स काढी देलो तापर पकाओ स्टोइचियोमेट्रिक मोल एनालिसिस पकाओ
रिएक्शन तो बैलेंस अछि मोल मोल एनालिसिस पका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मोल मोल एनालिसिस पके कि तुम काढो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट यार नंबर ऑफ मोल्स मिल गला परे आको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलार मास रे तुमको वेट मिल जिवो बुझे होछ कथाटा तुमको वेट मिल जिवो ओके तुमको वेट मिल जिवो आर आंसर तुम देखिबो 64.8 बाहरियो तुम निजर आंसर काढी के चेक करिवो 64.8 ग्राम बाहरुछ कि 64.8 ग्राम बाहरुछ कि चेक कर दबा ओके क्वेश्चन वेरी सिंपल अच्छे 64.8 is correct answer. Next question. Equal weight of zinc and iodine reaction अच्छे zinc reaction करुचे iodine सह equal weight of zinc and iodine react with each other to form ZnI2. ZnI2. Calculate a fraction of excess reagent left. Excess reagent केते बोलिक रहिगला मते फास्ट को लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कांसेप्ट जानिचो तो जानिचो ना जानिनो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कांसेप्ट जानिचो ना जानिनो यस और नो सुनो जिंक रा एटॉमिक वेट पुट करबे 65 क्वेश्चन ने दे देथिबो आयोडीन रा मोलेकुलर वेट पुट करिवो 254 254 mu this is AMU okay correct I2 टा लिमिटिंग रिएजेंट चलो एबे सॉल्व करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार आंसर करा I2 टा लिमिटिंग रिएजेंट अब यू आर करेक्ट जदि काहाकू लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट जानि पारे प्रॉब्लम होउची तमे कमेंट बॉक्स रे कहि पारो ठीक अछि कथाटा हला जो माने जानिचो क्वेश्चन सॉल्व करो जो माने जानिनो मते कहि पारो मु डिस्कस करि देबी नो प्रॉब्लम ओके ओके आ मते आ गोटे क्वेश्चन आंसर दियो मते आ गोटे क्वेश्चन रे आंसर दियो जेतेबेले रिएक्शन खत्म हे जाए रिएक्शन एंड हे जाए रिएक्शन सरी जाए हला देन क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट केते बोली के रहि जाए लिमिटिंग रिएजेंट केते बोली के रहि जेतेबेले रिएक्शन खत्म हो ठीक अछि 0 you are correct 0 yes yes your answer is correct limiting reagent आउ किछ नथिबो खत्म हे जाय चच कथाटा हला
ଏବେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଯିଏ ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସେସ୍ କହିଦବ, ଯିଏ ସପୋଜ ଜଣେ ଅଛି ଅଧିକା ମୋଲ୍ସ ଅଛି, ଜଣେ କମ ମୋଲ୍ସ ଅଛି, ଯିଏ କମ ମୋଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କହିଦବ। ସେମିତି କେବେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନଥାଏ। ବୁଝୁଛ କଥାଟା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି କି ଅଛ କି ଯେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିନ, ଯଦି ଜାଣିନ ମତେ ପଚାର, ହେଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କର। ଓକେ, ରଶ୍ମି, ଅଙ୍କିତା, ଜ୍ଞାନ, ଉଷାରାଣୀ, ସୋନାଲିକା, ସାଇ ସୋନା, ନମିତା, ଆଚ୍ଛା, ଶଶିରେଖା, ଅନାଦି, ସୁଶାନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ସୁଶାନ୍ତ କିଛି ଚାଟ୍ ଆସୁନି। ସେ ଯୋଉ କଣ ଥିଲା କଣ ବିଜୁ ଶିକ୍ଷା ସେବା। ସୁଶାନ୍ତର କିଛି ଚାଟ୍ ଆସୁନି। ଇପ୍ସିତା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଗଲା? ସ୍ୱାଗତ ଜେନା 75%। ସ୍ୱାଗତ ଜେନା କୋଉଠି ଅଛ? ସ୍ୱାଗତ ଜେନା କିଧର ହୋ ତୁମ? ହଁ, ବହୁତ ପଛରେ ଅଛ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କର। Deepak, all get consumed. Acha, 3/4. Let me check the answer. आंसर बाहरनी समथिंग। अच्छा, देखो तुम कौन आंसर बाहर देन मु सॉल्व कर 20 ग्राम 0.74%। से फ्रैक्शन पचारे परसेंट तुम कोड आंसर दउछ। फ्रैक्शन पचारते से तुमको परसेंट पचारे ही नहीं। बुझे होचे? ओके साई सुनना, ओके स्वागत। से परसेंट पचारे ही नहीं, से फ्रैक्शन पचारे छी। अब आंसर परसेंट रे दउछ। देखो मु सॉल्व करछे। मो पाखरे थिला कोन ना जिंक थिला ଆଉ ଆୟୋଡିନ ଥିଲା। ରିଆକ୍ସନ କରିକି ଦଉଥିଲା ରେଡେନାଇଟ। नो डाउट रिएक्शन ଅଛି ବାଲାନ୍ସଡ। ସେ କହୁଛି ଦିଅ ଯାକ ନେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ ୱେଟ, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ମୋର x ଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ମୋର x ଗ୍ରାମ। ଓକେ, ଇକ୍ୱାଲ ୱେଟ ବୋଥ ର ନେଇছে ଆମେ। ତାପରେ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ୱେଟ ଅଫ ଜିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଆୟୋଡିନ ଇକ୍ୱାଲ ୱେଟ ର ନେଇছে। ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ ଇଚ ଅଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଜେଡେନାଇଟ। ଆମକୁ एक्सेस रिएजेंट केते बलिक रही जाउची सेटा देखियार अछि। एक्सेस रिएजेंट केते बलिक रही जाउची देखा पूर्व हमको देखिया को पड़िबो जे एक्सेस रिएजेंट फर्स्ट किए लिमिटिंग रिएजेंट के एक्सेस रिएजेंट के तापर एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट करिवो केते तापर हम करिवो पडुची केते ताले दीटा कर वेट हम नेचे इक्वलेट धरा जो एटा x ग्राम एंड एटा भी x ग्राम क्वेश्चन तो कहै छै इक्वलेट नंबर अछि। तापर कहला जे हम एबे कोन करिवा ना नंबर ऑफ मोल्स काढिबा दियन जा कोन नंबर ऑफ मोल्स काढिबा केमते काना मोलार मास डिवाइड करबा। दिस विल बी x डिवाइडेड बाय जिंक रेट हम नेचे 65 x divided by 65 this is x divided by 254 254 दीटा कर नंबर ऑफ मोल्स मिल गला। एटी लिमिटिंग रिएजेंट के जेतेबेले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करिया टेक्निक मु कहि दउछ। मन का जो रिएक्शन अछि a plus 2b a plus 2b gives c a plus 2b gives c मन कर छै छोटी रिएक्शन अछि a plus 2b gives c ହେଲା। से कहै छै से तम पाखरे b अछि सपोज 8 मोल b अछि 8 मोल ए अच्छे 5 मोल ताले लिमिटिंग रिएजेंट के लिमिटिंग रिएजेंट जेतेबेले चेक करिवो दी जन जाकंकर केते केते मोल्स अछि त देई देछि तो मोल्स को स्टोइचियोमेट्री डिवाइड करिवो। एटा 5 मोल अछि 5 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री हला 1 मिलिबो हला 5 एटी हला 8 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री 2 मते मिलिला 4।
हमको बेसिकली जति गिवन मोल्स को स्टोइचियोमेट्री डिवाइड करिया अछि चलो मत जोठी स्मॉल वैल्यू मिलिला सेटा लिमिटिंग रिएजेंट जोठी एक्सेस वैल्यू मिलिला सेटा एक्सेस रिएजेंट ताले एटी स्मॉल वैल्यू कोटा ना दीटा को तो नंबर ऑफ मोल्स करिले स्मॉल वैल्यू हैला x by 254 दिस इज स्मॉल ताले आयोडीन एटा हे गला मोर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एटा हे गला एक्सेस रिएजेंट बुझो छ कथाटा ताले एबे एक्सेस रिएजेंट किए तो मिली वाला केते अछि ना x by 65 मोल अछि x by 65 मोल केते रिएक्शन करि जिवो केते रिएक्शन करियो केमिति जानिबी ना अप्लाई करबे मोल मोल एनालिसिस बुझि होछि एटी स्टोइचियोमेट्री 1 एंड एटी भी स्टोइचियोमेट्री 1 ताले अप्लाई करछे मोल मोल एनालिसिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 divided by stoichiometric coefficient 1 1 डिवाइड कला किछि मीनिंग भी नाही इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होछि डिवाइडेड बाय stoichiometric 1 किछि मीनिंग ही नाही 1 डिवाइड करिया होला ताले हम डायरेक्ट कोन लिखुछे 1 लिखितली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ताले नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक जोटा रिएक्ट करिजिवो बराबर हबो नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 सह तबने दिस विल बी बराबर विथ x by 254 x by 254 ताले एते x by 254 मोल x by 254 मोल रिएक्ट करिजिवो कहार जिंक रो ताले बॉडी के रहइबो केते केते बॉडी के रहिছে सेटा पचारछि फ्रैक्शन लेफ्ट ताले केते बॉडी के रहिଯିवो ना x by 65 माइनस x by 254 माइनस कर देले एटी जो फ्रैक्शन वैल्यूटा तुमको मिलिबो सेई गोटा कहउजे तुम आंसर एटा माइनस कर देले तुमको मिलि जिवो तुम आंसर ओके करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखि जो टिके एटा माइनस कले जहा आसीबो आई थिंक हो 189 by 254 अच्छा ए गोटा को सॉल्व करके देखि देबो जहा आसीबो हला ठीक अछि सॉल्व करिवाटा तुम ऊपर तो छाडी परिबा एटलीस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ 200 gram of 200 gram of sample of HCl 200 gram of sample of HCl 200 gram of sample of HCl HCl कहिछि केते ग्राम रे नै चाहे 200 ग्राम रो 73% प्यूरिटी एटा परसेंटेज प्यूरिटी रो क्वेश्चन कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट हला ठीक है कैलकुलेट वेट ऑफ हां गोटे ऑप्शन दे दोचे 200 ग्राम ऑप्शन बी 160 ग्राम ऑप्शन सी 75 ग्राम ऑप्शन डी 80 ग्राम सॉल्व करो 200 gram sample of HCl having 73% purity. Calculate weight of sodium hydroxide required to neutralize it. Solve your answer. Solve your question. Option B okay 160 okay स्वागत नमिता okay बाकी समझते 160 approximately okay 160 gram okay you all nailed it okay ठीक अच्छे हाँ समस्त आंसर 160 समस्त आंसर 160 ओके ओके ताले परसेंटेज प्यूरिटी वाला क्वेश्चन परसेंटेज अच्छा टोटल ऊपर सैंपल अच्छे 200 ग्राम रो HCl परसेंटेज प्यूरिटी है 73%
बुझुछ कथाटा तमाने 100 ग्राम रे 73 ग्राम HCl 200 ग्राम रे केते हो दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट ताले बाकी तो सब इम्प्योरिटी थिबो तमाने परसेंटेज प्योरिटी ले केते 73% 73% बराबर कहा सो ना वेट ऑफ HCl weight of HCl percentage purity एमती पढ़ा जाए ना weight of HCl divided by given weight केते 200 given weight 200 into 100 बस हमके केटे मिली जीवो weight of HCl तुमको मिली जीवो ହେଲା weight of HCl मिली जीवो weight of HCl पाई गला परे तुमे मोलार मास रे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl काढी पारिबा ହେଲା बुझौछि ये कांसेप्ट में डिस्कशन करि सारी छी ठीक अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl काढी परिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl काढी सरला परे कहछि सोडियम हाइड्रोक्साइड दरकार हबो तमे रिएक्शन होछि कोन ना HCl प्लस NaOH gives NaCl plus water. This is a balanced chemical reaction. गोटे HCl ପାଇଁ गोटे NaOH ଦରକାର ବୁଝୁଛି କଥାଟା ତା ମାନେ HCl ଯେତିକି ମୋଲ ଏଠି ବାହାରିବ ସେତିକି ମୋଲ ଦରକାର ହବ NaOH ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ କାଢି ଦବ ମୋଲ ମୋଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପକା ନହେଲେ ପାଟିରେ ପାଟିରେ डायरेक्ट ବାହାରି ଯାଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ ଅଫ NaOH ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ ଅଫ NaOH କାଢି ସାରିଲା ପରେ ୱେଟ କାଢି ଦବ ତାର ମୋଲାର ମାସ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିକି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ आंसर हबो 160 ग्राम 160 ग्राम is the correct answer. Okay, done. Next question. 12.8 gram of a sulfur dioxide react with 3.2 gram oxygen to form sulfur SO3 है sulfur dioxide. If 6 gram of SO3 are produced, then calculate percentage yield. Percentage yield question. Okay, option दे दूँ तुमको. Percentage yield रो question है एटा जल्दी सॉल्व लेट करोनी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहिलानी ओके करेक्ट 37.5% is the correct answer 37.5% is the correct answer बेसिकली हमको कौन करिया थिला ना क्वेश्चन थिला सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड SO3 हला से कहछ SO3 मिलुचे केते ग्राम 6 ग्राम रा मिलुचे कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड अच्छा हमको दोचे जे सल्फर डाइऑक्साइड देछि 12.8 ग्राम रा 12.8 ग्राम ऑक्सीजन देछि 3.2 ग्राम रा 3.2 ग्राम तो हमको क्वेश्चन जिते बेले रिएक्टेंट थिबो मोर देन 1 हमको प्रोडक्ट विषय रे किछि इंफॉर्मेशन पचारि थिबो मोर देन 1 रिएक्टेंट देथिबो आ मोर देन 1 रिएक्टेंट मान को विषय रे इंफॉर्मेशन देथिबो मो कथाटा बुझ मोर देन 1 रिएक्टेंट थिबो मोर देन 1 रिएक्टेंट मान को विषय रे इंफॉर्मेशन देथिबो से जगह रे हमें लिमिटिंग रिएजेंट आ एक्सेस रिएजेंट रो कांसेप्ट अप्लाई करिबा
बुझौछ चल हमको दे देला बीटा कर वेट दे देला वेट रू एबे काढीबी नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 अच्छा ओके नंबर ऑफ मोल्स काढीबी यार नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 काढीबी दी जण जाकंकर नंबर ऑफ मोल्स काढी सरला परे हला ता पर चेक करबी नंबर ऑफ मोल्स काढी सरला परे हला ता पर चेक करबी जे बतन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कि ताको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट चेक करेबे हला आई थिंक ए टाइप रो क्वेश्चन हमें बहुत करि साइछ हम तुमे करि परिबो हला ठीक अछि कथाटा तो नंबर ऑफ मोल्स दी जन जाको पाई साला पर ताको देखिबी मोर लिमिटिंग रिएजेंट के एक्सेस रिएजेंट के जे लिमिटिंग रिएजेंट हेतिबो ता अनुसार ही सब बेले रिएक्शन गठन करिवो बुझियला तो जे लिमिटिंग रिएजेंट हेतिबो तार नंबर ऑफ मोल्स को लेके मु अप्लाई करिबी मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करके काढिबी SO3 केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस हबो बुझौछ कथा नंबर ऑफ मोल्स काढिबी हमको SO3 रो वेट देचे मिली केते ग्राम 6 ग्राम रो मिली मते एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 मिली गला परे मु ताको कन्वर्ट करबी वेट ऑफ SO3 वेट ऑफ SO3 केते हबो वेट मिली गला पर एठी मते जो वेट मिली ए क्वेश्चन को तुम सॉल्व कला पर तुमको आंसर मिलिबटे 16 हला ठीक अछि आंसर मिलिबटे 16 मिलिबो आंसर मिलिबो 16 ओके 16 ग्राम मिलिबो जोटा कि थियोरेटिकल प्रोडक्ट माने थियोरी अनुसार SO3 केते बाहरिबा कथा 16 ग्राम रो बाहरिबा किंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केते बाहरिछि 6 ग्राम रो बाहरिछि तला परसेंटेज यील्ड हमें काढिबो केमते परसेंटेज यील्ड हे जिवो परसेंटेज यील्ड हे जिवो कोन ना वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ theoretical product into 100 एक्चुअल प्रोडक्ट केते मिलिछि 6 ग्राम रो डिवाइडेड बाय theoretical product केते 16 ग्राम रो ताको गुणा कर दबो 100 जोटा आंसर मिलिबो दैट इज योर करेक्ट आंसर ओके बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं यस और नो यस और नो जदि बुझी न पारलो कुह आउ थरे बुझाई देबी प्रोसेस मु कहि देछि सॉल्व करिया काम तमरो बस ठीक अछि सॉल्व करिया काम तमरो ला सॉल्व करिया काम तमरो ओके डन करि परिबो एबे करि परिबो नंबर ऑफ मोल काढियार अछि ठीक अछि नंबर ऑफ मोल SO2 रा केमिति केते हे जिवो मोला एठी गिवन वेट हला 12.8 मोलार मास रे डिवाइड कर मोलार मास हला 64 डिवाइड कले एठी आसीबो डिवाइड कले आसीबो 0.2 मोल 0.2 मोल एठी O2 अछि O2 रा मोलार मास हला 32 3.2 को 32 रे डिवाइड करिबे आंसर हे जिवो 0.1 मोल 0.1 मोल એટલે ଏବେ ଦେଖିବେ stoichiometric coefficient को यूज करके लिमिटिंग रिएजेंट के काढिबे ताले एठी stoichiometric coefficient 1 एठी भी 1 एठी 0.2 को डिवाइड करिबे 1 ने मिलिबो केते 0.2 0.1 को डिवाइड करिबे 1 ने मिलिबो केते 0.1 स्मॉलर वैल्यू एठी मिलिला त माने एटा हे जिवो लिमिटिंग रिएजेंट एटा मोर हे जिवो लिमिटिंग रिएजेंट एटा हे जिवो एक्सेस रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करबे मोर प्रोडक्ट केते फॉर्म हबो अप्लाई करिवे मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करके प्रोडक्ट SO3 रा नंबर ऑफ मोल्स काढिबे नंबर ऑफ मोल्स काढिला परे वेट काढिबे एटा हला मोर थियोरेटिकल प्रोडक्ट किंतु क्वेश्चन कहूची कि एक्चुअली रे मते प्रोडक्ट मिलिछि केते 6 ग्राम रो जे 6 ग्राम रो मिलिछि मु एबे काढिबे परसेंटेज यील्ड हला एक्चुअल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ थियोरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100 सॉल्व करले जो आंसर बाहरिबो दैट इज करेक्ट आंसर ओके here answer will be 37.5 the next question huh. how many milliliter of a solute how many milliliter of a solute should be added in 300 milliliter water to obtain a solution containing 80% by volume of a solvent 80% by volume of a solvent okay जल्दी सॉल्व करो how many milliliter of whole solute should be added in water it water the solvent तर volume देछि 300 milliliter to obtain a solution containing 80% by volume of a solvent ठीक अछि कथा 80% by volume of a solvent
ओके ठीक अच्छे ऑप्शन दे दौचे ऑप्शन ए 80 मिलीलीटर ऑप्शन बी 90 मिलीलीटर ऑप्शन सी 70 मिलीलीटर ऑप्शन डी 75 मिलीलीटर सॉल्व करो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रो क्वेश्चन एटा ठीक अच्छे जल्दी सॉल्व करो मैक्सिमम 1.5 मिनिट भीतर 1.5 मिनिट भीतर क्वेश्चन सॉल्व हो जावा कथा ठीक अच्छे ओके मैक्सिमम 1.5 मिनिट भीतर क्वेश्चन सॉल्व हो जावा कथा जल्दी सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो ओके योर आंसर इज 75 मिलीलीटर ओके 75 मिलीलीटर इज करेक्ट ठीक अच्छे बाकी समस्त रेस्पॉन्स को वर्क करछे जल्दी सॉल्व करो बहुत टाइम नहीं गलो आंसर विल बी 75 मिलीलीटर इज करेक्ट हैला देखो केमते सॉल्व करिया अछि the question होचे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेटेड हैला एटा किछि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन सब बेला ख्याल रखितो दुटा जिंस जे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सब बेला हबो 100% 100% एटा ख्याल रखिबा आ गोटे जिंस ख्याल रखिबो जे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट बराबर हबो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ହେଲା ଯେତେବେଳେ percentage ଭଲ୍ୟୁମ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ କାଢିବ ମୁଁ ସପୋଜ କହୁଛି percentage ଭଲ୍ୟୁମ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ ଠିକ ଅଛି କଥାଟା ତ ଯେତେବେଳେ percentage ଭଲ୍ୟୁମ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ ମୁଁ କାଢିବି percentage ଅଛି ମାନେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଉପରେ ଭଲ୍ୟୁମ କାହାର ସବୁବେଳେ ଯଦି ସଲ୍ୟୁଟ କହିଥିବ ସଲ୍ୟୁଟ ର ସଲଭେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସଲଭେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତଳେ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି ଏ ତଳେ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି ଏଟା କାହାର ନା ସଲ୍ୟୁସନ ର ତାମାନେ ଏଟା ହେଇଯିବ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ
ख्याल रखिबो ऊपर जदि मिलीलीटर रे नेबी तळे मिलीलीटर रे ऊपर लीटर रे नेले तळे लीटर रे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ओके ठीक अछि सॉल्यूट केते वॉल्यूम रो ऐड करबी मु जाननी ना धरा जो केते वॉल्यूम ऐड करबी मु सेटा को नै जाउछ v सेटा नंबर v डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हे जिवो वाटर वॉल्यूम हैला 300 मो सॉल्यूट सपोज ऐड करछि v मिलीलीटर तमे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हे जिवो 300 प्लस v इनटू 100 करेक्ट करेक्ट अच्छा तो मैंने दिस implies v divided by 300 plus v into 100 is equal to केते हबो ना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मु एटा सॉल्यूट करस्पोंडिंग रे नै सॉल्यूट ऑफ वॉल्यूम को v बोली पुट करछि तब देखो मु कहै छी जे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हला 100% एटा कहै छी 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केते हिजिबो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केते हिजिबो 20% तमाने मु एटा पुट करिवे 20 एटा सॉल्व करिवि सॉल्व करके v रो वैल्यू एठू काढिबि v रो वैल्यू जति हबो सेति हबो मोर आंसर हैला v रो वैल्यू हबो 75 तो आंसर हे जिवो 75 ओके तो मु तीनोटे क्वेश्चन दउची तुमको जोटे तुम निजर ट्राई करिवो जदि किछि प्रॉब्लम हैला मते नेक्स्ट क्लास रे कहदो ठीक अछि क्वेश्चन लेखो 5 मोल्स of glucose 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water one 1.1 kg of water ठीक अछि कथाटा if density of a solution is 1.25 gram per milliliter then determine percentage weight by volume of glucose आ गोटे क्वेश्चन नोट कर दियो जल्दी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट वॉल्यूम कोतरा काढिया अछि से कहूची लीटर रे वॉल्यूम हमको काढिबा लीटर रे काढिबा इन लीटर कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ammonia gas produced at NTP produced at NTP produced at NTP हैला बुझे होची when 500 milliliter of 500 milliliter of 0.2 molar ammonium sulfate solution reacts with 250 milliliter of 0.6 molar 0.6 molar sodium hydroxide solution ठीक अछि हैला क्वेश्चन सॉल्व करिवे क्वेश्चन तार रिएक्शन दे दो तुमको छै अमोनियम सल्फेट NH4 whole to SO4 plus 2 NaOH मु एठी तुमको ए रिएक्शन दे दो छै एग्जाम रा होय त न देई पारे Na2SO4 along with 2NH3 along with water ठीक अछि जल्दी नोट करा ना स्क्रीनशॉट नै जा क्विक नोट करना स्क्रीनशॉट नहीं जाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन को
Calculate normality of a solution. Solution containing 0.74 gram of calcium hydroxide. Calcium hydroxide dissolved in 200 milliliter of the solution. The solution a question solve करके आसथिबा ठीक अछि दैट्स इट फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास को ए तीनटा क्वेश्चन निजे ट्राई करथिबो जदि किछ प्रॉब्लम हैला देन वी विल डिस्कस ओके ठीक अछि दैट्स इट फॉर टुडे मु गोटे मिनिट वेट करूचे जदि कहार किछ कहिबार अछि कहिबार अदरवाइज क्लास इज ओवर फॉर टुडे आज हमें गोटे क्लास रे मोल कांसेप्ट बेसिक कांसेप्ट हमर जो पार्ट थिला मोल कांसेप्ट बेसिकली कहले बेसिक कांसेप्ट मेजर पार्ट है मोल कांसेप्ट ହେଲା ତ ଆମେ ସେଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ ଓକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ ଆମେ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ର କହିପାର ତମେ ଆକୁ ୱାନ୍ ଶॉट ଓକେ ୱାନ୍ ଶॉट ରେ ଆମେ କଭर କରିଛେ ଖତମ କରିଛେ ଆକୁ मोलारिटी और तुमको जो दुटा क्वेश्चन देली तादर मोलारिटी और नॉर्मलिटी फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करिवे जदि किछ प्रॉब्लम हैला नेक्स्ट क्लास टुमारो ओके काली हम क्लास करिवा काली स्टेट्स ऑफ मैटर अल्किन अल्काइन एंड एरोमेटिक बेंजीन तो क्वेश्चंस करिवा ठीक अछि ओके ओके सबसे रेखा काली मोस्ट प्रोबेबली से 11टा पाखापाखि बेलको मेसेज तुमको जीवो हला से आमे क्लास रखिबा आज में एतुकी ठीक अछि ओके ओके सबिता थैंक यू टू ऑल ऑफ यू क्लास केमिति लागिला कमेंट रे जणैबो एंड लाइक तो समस्त करके ही जीवो ऑलरेडी हला ज्ञानरंजन थैंक यू मधुसूदन लास्ट 0.005 अच्छा वेट मु चेक करूचे लास्ट है 0.1 नॉर्मल ला तो ठीक अच्छे आज मैं से था देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक्स फॉर जॉइनिंग टाटा बाय बाय ओके ओके थैंक यू